Hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video tutorial session of electrical machines. Guys, where in this new segment concept of the day, I welcome you all, and today's question is, what are the differences between a DC shunt motor and a DC series motor? So guys, in Hindi, okay, as well as in English, I will explain you. Okay, so आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस. So guys, here you can see over here in the diagram, okay, this is the diagram of DC shunt motor and this is the diagram of DC series motor. So what happens guys, आपको पहले से पता है कि एक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसी शंट मोटर मीन्स द फील्ड वाइंडिंग, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर. ये आर्मेचर है डीसी शंट मोटर का जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, less than 1 ohm. The value of RA is very small and always less than 1 ohm. And this is the line current, this is the supply terminal, this is line current, and this is armature current, and this is field current, shunt field current. And what happens guys, और ये DC series motor आप देख सकते हैं. Here is the DC series motor because the field winding is connected in series with the armature. That's why it is called DC series motor. तो फील्ड वाइंडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है गाइस? द बिगेस्ट डिफरेंस इज हियर द शंट फील्ड वाइंडिंग. डीसी शंट मोटर का अगर आप बात करें तो जो फील्ड वाइंडिंग है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और थिन वायर्स की बनी होती है, पतले वायर्स की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है. गाइस, इट इज हैविंग high resistance and it is made of thin wires and having large number of turns. This is the field winding. और इसको 220 वोल्ट या जो भी रेटेड सप्लाई वोल्टेज है उसको बियर करना पड़ता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. ओके, बिकॉज it has to bear large voltage, rated voltage. Okay, that's why it is connected in parallel and it is having higher resistance. जबकि guys in DC series motor what happens, जो field winding का resistance है वो small होता है because the field winding in DC series motor is having thick wires. It is made of thick wires and it is having less number of turns. And it is having less resistance. That's why it is having less resistance. So this is the main difference. And here also यहाँ पर देखिए सर्किट जो है वो जो यहाँ जो पैरेलल सर्किट था वो यहाँ पर सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको आप बोलते हो डीसी सीरीज मोटर और इसको आप बोलते हो डीसी शंट मोटर बिकॉज हियर पैरेलल कनेक्शन इज देयर. ओके गाइस, तो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है वो शंट फ्लक्स प्रदान करेगा, इट विल प्रोवाइड 5SH. और यहाँ पर जो सीरीज फील्ड है वाइंडिंग है वो सीरीज फ्लक्स प्रदान करेगा, इट विल प्रोवाइड 5SE. वी राइट 5SE. सो दिस इज द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, okay, between DC shunt and DC. And also you can see over here the voltage equation or EMF equation of DC shunt motor is written over here. आप यहाँ पर देख सकते हैं V is the terminal voltage. जो इस टर्मिनल पर सप्लाई वोल्टेज लगा होता है that is called terminal voltage connected across this supply terminal. Okay, and E is the EMF, back EMF. You can also call it back EMF. And that is always opposite to the rated voltage, supply voltage. ये जो वोल्टेज होता है ये हमेशा काउंटर EMF या बैक EMF कहलाता है and it is always opposite to the supply voltage guys. And E is generally ये टर्मिनल वोल्टेज का 99% होता है जो बैक EMF होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर बनता है.
So guys, here is the equation of EMF equation of DC shunt motor, and IA is armature current. जो करंट आर्मेचर में फ्लो हो रही है, दिस इज द करंट, आर्मेचर करंट फ्लोइंग इनटू द आर्मेचर, that is called armature current. And armature resistance you can see over here, IA RA drop. So the multiplication of both IA into RA becomes IA RA drop. जो बहुत ही स्मॉल ड्रॉप पाया जाता है, इसको आप बोलते हो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप. So guys, here V equal to, you can write V equal to E plus IA RA. Whereas in DC सीरीज मोटर जो फील्ड वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस RSC होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सीरीज में इसके साथ ऐड होगा. इट विल बी एडेड विद दिस आर्मेचर रेजिस्टेंस. सो द इक्वेशन बिकम्स V इक्वल टू E प्लस IARA प्लस IARSC. सो IA कॉमन हो जाएगा, और इन ब्रैकेट यू कैन राइट RA प्लस RSC. So and second equation is current equation. आप देख सकते हैं guys, I is line current. I is called line current, and this line current flows from the supply terminal, and it will be divided into two parts in DC shunt motor. Armature current, one part is armature current, another part is shunt field current. So it becomes I equal to IA plus ISH. जबकि guys, what happens series motor में क्या होता है, ये फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट सीरीज में कनेक्ट होते हैं. बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. दैट्स व्हाई all the current flowing through this circuit will be equal. So you can write line current IL equal to field current equal to armature current. So all the currents are equal. So here I equal to, you can write line current equal to field current equal to armature current. So this is another difference. Okay, now we will move towards our next slide. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं DC शंट मोटर के टॉर्क के बारे में अब हम बात करेंगे. We will talk about DC शंट मोटर्स टॉर्क and DC सीरीज मोटर्स टॉर्क. So first point आप देखिए यहाँ पर, DC शंट मोटर have a relatively less starting torque. तो आप जान सकते हैं या देख सकते हैं गाइस, डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही कमजोर होता है. इट इज हैविंग पुअर स्टार्टिंग टॉर्क. देखिए टॉर्क का इक्वेशन आपको पता होगा, आप यहां से देख सकते हैं. दिस इज द डेरिवेशन. आप वीडियो को पॉज करके ये डेरिवेशन देख सकते हैं कि यहां से ये इक्वेशन आता है, वेयर इलेक्ट्रिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, बिकम इक्वल टू मैकेनिकल पावर, और EB जो है बैक EMF है, IA इज आर्मेचर करंट, T इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, जिसको आप लिख सकते हैं 2 pi n upon 60, and where n is in RPM, okay, rotation per minute, and back EMF you can write P phi nz upon 60A, and you can put in this equation and you will get electromagnetic torque equal to 0.159 P phi ZIA upon A. अब होता क्या है गाइस, ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट होती है, and this becomes equal to K. 0.159 number of poles P, number of armature conductors Z, and armature path of current. Okay, parallel path of current is capital A. So these are the constants. So you can write the torque of DC motor is correctly proportional to phi into armature current IA, phi into IA. So it becomes T proportional to phi into IA. Okay, thus torque produced by the DC motor is proportional to the main field flux. Phi is the main field flux and armature current is IA. So आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि DC शंट मोटर में क्या होता है गाइस, फ्लक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. जो फील्ड फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट पाया जाता है. दैट्स वाई जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है. इसलिए यहाँ पर जो है टॉर्क कमजोर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड फ्लक्स कमजोर है. जबकि गाइस व्हाट हैपेंस इन डीसी सीरीज मोटर, हियर द इक्वेशन बिकम्स T equal to, you know, TA is directly proportional to phi into IA, और यहाँ पर जो है ये वाला फ्लक्स जो है ये फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है. इसलिए आप यहाँ पर IA स्क्वायर देख सकते हैं. तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पर आप
ये फील्ड करंट के इक्वल है और आर्मेचर करंट के इक्वल है। फील्ड करंट जो है वो आर्मेचर करंट के इक्वल है, इसलिए इस फ्लक्स के जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस फ्लक्स यू कैन पुट IA। तो ये IA इंटू IA मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। सो गाइस इन DC सीरीज मोटर, DC series motor is having relatively huge starting torque because TA is directly proportional to IA square, here you can see। तो अगर करंट आर्मेचर करंट डबल होता है DC शंट मोटर में तो टॉर्क 2 टाइम्स हो जाएगा DC शंट मोटर में, और अगर आर्मेचर करंट 2 टाइम्स होता है DC सीरीज मोटर में तो आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सो यही सेकेंड पॉइंट है गाइस, है पुअर एक्सीलरेटिंग टॉर्क। तो DC शंट मोटर इसीलिए पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें, जबकि DC सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाया जाता है, और यहाँ पर इट इज हैविंग गुड एक्सीलरेटिंग टॉर्क। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी या डिफरेंस जो है वो ये है गाइस, DC शंट मोटर को आप बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर। ओके, हियर यू कैन सी third point, approximately constant speed value and initial torque value will be medium up to the range of 1.5 full load torque। जो इनिशियल टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क का 1.5 टाइम्स पाया जाता है, लेकिन जो DC सीरीज मोटर होती है उसको आप बोलते हो गाइस, इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड मोटर एंड इट्स इनिशियल टॉर्क वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, काफी टाइम्स ज्यादा होती है ये फुल लोड टॉर्क के जो इनिशियल टॉर्क होता है वो। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। व्हाट आर द नेक्स्ट डिफरेंस, हम आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज DC शंट मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर। सो व्हाट हैपेंस गाइस, यहाँ पर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स and what are the different properties of DC shunt and series motor। Okay, and here you can see in this part DC series motor, the DC series motor is variable speed motor। Okay, and DC shunt motor is never started at on load, always started at no load। And here you can see DC series motor is never started at no load, always started at some load। So guys, होता क्या है, DC शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफी पुअर है, इसलिए इसको नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है। अगर आप इसको लोड पर स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग टॉर्क इसका कमजोर पाया जाता है। Whereas guys in DC series motor what happens, it is having high starting torque, so it is always started with some load connected at the shaft। Okay, never started at no load, इसको कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए गाइस स्विनबर्न टेस्ट जो है वो नो लोड पर किया जाता है, और जिसमें DC सीरीज मोटर यूज नहीं की जाती है, आपको पता होगा गाइस, इसीलिए। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द मैथमेटिकल डिफरेंस। ओके, नाउ वी विल कम टू द कैरेक्टरिस्टिक कर्व कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होते हैं DC शंट और DC सीरीज मोटर के बीच, वो हम देखेंगे गाइस। तो देखिए पहला जो कर्व है वो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, यू कैन सी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो देखिए सबसे पहले टॉर्क का इक्वेशन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क एंड व्हाट इज द स्पीड इक्वेशन ऑफ DC शंट एंड सीरीज मोटर। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, वी ऑलरेडी सीन दिस, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi into IA। और DC शंट मोटर में what happens, flux is constant, flux is proportional to ISH, ISH means shunt field current, and shunt field current is always constant in DC shunt motor, इसलिए flux भी constant पाया जाता है, flux is also constant, so torque is directly proportional to armature current in case of DC shunt motor guys, you can see over here। बट इन केस ऑफ DC सीरीज मोटर आप यहां पर देख सकते हैं, टॉर्क हम जानते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi into IA के, जबकि गाइस यहां पर क्या होता है, क्योंकि फील्ड सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए यहां से जो करंट फ्लो होती है वो आपस में तीनों करंट जो हैं, ऑल द करंट्स आर इक्वल, एंड वेदर यू कॉल लाइन करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। तो यहां पर गाइस फील्ड करंट आर्मेचर करंट के इक्वल होती है, और फ्लक्स जो है ये वाला जो फील्ड फ्लक्स है
ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, मतलब यहां से जितनी भी करंट पास होगी, whatever the current passes through this field is directly proportional to the flux, or flux is directly proportional to the current, and that's why we write in place of phi Ia. Okay, so replace this phi with this Ia and you will get T is directly proportional to Ia square. ये Ia square times होता है, इसलिए यहाँ पर आप जानते हैं guys, you already know torque is very huge in case of DC series motor. And speed equation देखिए, we know for DC motor, any DC motor, you know back EMF can be written as P phi NZ upon 60A. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं P phi NZ upon 60A. And what happens? So you can write speed is directly proportional to back EMF upon flux, and that is directly proportional to V minus Ia Ra upon flux. अब क्या होता है guys, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इस इक्वेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स को कांस्टेंट लिया है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू नहीं है, तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V माइनस Ia Ra के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फ्लक्स। यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है गाइस, इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर फ्लक्स इज नेवर कांस्टेंट। ओके, so you can write in place of EB V minus Ia Ra minus Is Rs, means ये सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस ऐड होगा इसके साथ, डिवाइडेड बाय फ्लक्स, and you can write V minus Ia in bracket Ra plus Rse divided by 5. So guys, this is the mathematical expression for speed and torque. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। देखिए ये वाला कर्व जो है, सप्लाई वोल्टेज बेसिकली कांस्टेंट पाया जाता है डीसी शंट मोटर में। देखिए सप्लाई वोल्टेज बेसिकली कांस्टेंट है, तो फील्ड फ्लक्स ये देखिए कांस्टेंट होता है, तो टॉर्क का जो इक्वेशन बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्क एंड आर्मेचर करंट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि यहां पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर आर्मेचर करंट लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर टॉर्क लिया हुआ है, तो अगर आर्मेचर करंट डबल होता है, यहां आप देख सकते हैं इफ आर्मेचर करंट इज डबल्ड, torque will also be doubled, so the characteristic curve will be like this, straight, okay, straight line. This kind of curve appears, okay, in case of DC shunt motor, and this is the first characteristic between torque and armature current. Whereas guys, in case of DC series motor, you can see over here the equation of torque, TA is directly proportional to Ia square. Okay, armature current is taken on x-axis, आर्मेचर टॉर्क इज ऑन वाई एक्सिस। सो अगर आर्मेचर करंट डबल होता है, इफ आर्मेचर करंट इज डबल्ड, सो टॉर्क बिकम्स 4 टाइम्स, इसलिए दिस कर्व कम्स गाइस, द टॉर्क इज लाइक पैराबोला। आर्मेचर करंट कर्व, टॉर्क आर्मेचर करंट कर्व इज पैराबोला अप टू ए पॉइंट ए। देखिए यहां तक, सो अप टू द पॉइंट ए द कर्व इज पैराबोलिक। यहां तक जो कर्व होगा वो पैराबोला होगा, आप देख सकते हैं यहां पर ए तक। और गाइस आफ्टर पॉइंट A to B what happens, saturation आना शुरू हो जाता है, because of the high value of current saturation comes in this machine. Okay, so what happens, due to saturation field flux remains constant and it does not increase with the increase in current. करंट बढ़ने के साथ साथ फील्ड फ्लक्स जो है वो नहीं बढ़ता, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जो कर्व है वो T proportional to Ia का फॉलो होता है from A to B. So guys, what happens between these points A and B, due to the saturation, due to the flux constant, flux remains constant, the curve follows the straight line because TA now is directly proportional to the armature current. Okay, here up to O to A it is proportional to Ia square, but from A to B armature torque is directly proportional to Ia, armature current. So this is the curve obtained in a case of DC series motor. Okay, so we will proceed next in the next slide. देखिए फिर सेकेंड कर्व जो गाइस ये है between speed versus armature current. Okay, you can see over here. देखिए स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर
in case of DC motor, speed directly proportional to back EMF upon flux. और बैक EMF को आप यू कैन राइट इट डाउन EB इक्वल टू V माइनस IaRa. सो गाइस व्हाट हैपेंस इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेस. यहां पर आप देख सकते हैं, करो देखिए, आर्मेचर करंट ऑन एक्स एक्सिस एंड स्पीड ऑन वाई एक्सिस. सो इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या होता है गाइस, IaRa ड्रॉप इंक्रीजेस एंड V रिमेन्स कांस्टेंट. टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है. और IaRa की वैल्यू, Ia बढ़ने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन IaRa ड्रॉप इंक्रीजेस. सो द ओवरऑल वैल्यू V माइनस IaRa इज डिक्रीज्ड. सो बैक EMF डिक्रीज्ड. ओके, बैक EMF की वैल्यू कम होती है आर्मेचर करंट के बढ़ने के साथ साथ. बट गाइस साथ ही साथ एज वेल एज फ्लक्स की वैल्यू देखिए. आर्मेचर करंट बढ़ने से व्हाट हैपेंस, फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन एक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. करंट बढ़ेगा अगर, इफ इन केस आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, तो वहां पर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है जिसमें फील्ड फ्लक्स की वैल्यू कम होती है, आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को दबाता है, कम करता है. आप पहले से जानते हैं, यू ऑलरेडी नो इन आर्मेचर रिएक्शन द आर्मेचर फ्लक्स reacts over field flux and it will try to disturb the field flux in terms of magnitude and waveform. So guys what happens, field flux की वैल्यू कम होगी जिसके कारण जो है वो n का जो स्पीड है वो कांस्टेंट बना रहता है. यहां आप देख सकते हैं, therefore the DC shunt motor is practically constant because EB भी घटेगा और फ्लक्स भी घटेगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. तो लोड करंट अगर बढ़ेगा गाइस, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो ये आइडियल स्पीड है, नो लोड स्पीड है, जो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्पीड है जो डैश डैश करके जो बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल स्पीड. और वो जो है, सो वी कैन कंक्लूड इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर. ओके, इसीलिए गाइस इसको डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर कहा जाता है. और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी ओवर हियर, द डीसी शंट मोटर इज वेल सुटेबल फॉर लेथ्स. लेथ में आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, यू रिक्वायर कांस्टेंट स्पीड फॉर शेपिंग एंड कटिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड मशीन टूल्स. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कांस्टेंट स्पीड ड्राइविंग, shafting, milling machine, conveyors, and conveyors also require constant speed. So that is why DC shunt motor is used in these applications. So guys, ये जो कर्व है between speed versus armature current, ये आता है linearly decreases. Okay, now we will talk in case of DC series motor. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा. अब देखिए गाइस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड. स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फ्लक्स. अब यहां पर देखिए गाइस, फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो प्रॉब्लम स्टार्ट्स. फ्लक्स इज नेवर कांस्टेंट इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर. तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, इफ एनी केस आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, बैक EMF भी रिड्यूस होगा. बैक EMF विल रिड्यूस, ओके, वेरी स्मॉल, बट चेंज इन बैक EMF इज वेरी स्मॉल ड्यू टू स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर. यही इक्वेशन जो है, इसमें प्लस आप और यूज करेंगे IaRa प्लस RaC. तो ये सीरीज का इक्वेशन बन जाएगा, Ra प्लस RaC. ओके, EB इक्वल टू V माइनस Ia इंटू ब्रैकेट Ra प्लस RaC. तो लेकिन क्या होगा गाइस, व्हाट हैपेंस, फील्ड फ्लक्स इज नेवर कांस्टेंट. तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा गाइस, इफ हियर यू कैन सी ऑन एक्स एक्सिस, इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, फील्ड फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है. बिकॉज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड दैट्स व्हाई ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस फील्ड वाइंडिंग एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो फील्ड फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस रैपिडली. एंड व्हाट हैपेंस, फील्ड फ्लक्स की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी. ओके, यू कैन सी हियर, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ फील्ड फ्लक्स and reduces the speed. और स्पीड जो है वो तेजी के साथ नीचे आएगी
you can see over here, and this is called the hyperbola. This is called hyperbola curve is obtained. Okay, so that's why if current increases in case of DC series motor, speed decreases rapidly, बहुत ही तेजी के साथ स्पीड नीचे आएगी और एक हाइपरबोला कर्व आपको प्राप्त होगा. Okay, so this was the characteristics second between speed versus armature current. Okay, and then third characteristic you can see between speed versus torque. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए this is the formula for back EMF. You already know P phi NZ upon 60A, and you can write down N is directly proportional to EB upon flux, and you can write V minus IARA upon flux, and flux is constant. तो फ्लक्स कांस्टेंट है. अब आर्मेचर करंट बढ़ेगा या टॉर्क बढ़ेगा, ओके, तो जो ग्राफ होगा वो सेम होगा गाइस, लाइक प्रीवियस. ओके, इसके जैसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा. ओके, सो इफ टॉर्क इंक्रीजेस और आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स इज कांस्टेंट इन डिनोमिनेटर, so it does not affect, okay, any value, and V is also constant, that is terminal voltage. So if IA increases, the numerator, you can see over here, this will decrease, okay, and that is why speed also decreases, but in gradual manner. Okay, so if torque increases, so both are inversely proportional, speed and torque are inversely proportional. Okay, and so when torque increases, speed decreases gradually, not rapidly. Okay, यहाँ पर तेजी के साथ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे स्पीड कम होती है डीसी शंट मोटर में. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी सीरीज मोटर का केस गाइस. सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन between torque versus armature current? You can see over here, torque is directly proportional to Ia square. This is the first equation. And second equation, you can see speed is inversely proportional to armature current. You can see, so you can put the value of armature current here. So you can put armature current becomes under root 2. Okay, armature current is directly proportional to under root T torque. Okay, now you can put in place of this armature current, it will come under root T. So speed inversely, its speed becomes inversely proportional to the under root of torque. So guys, यहाँ पर क्या होगा, अगर टॉर्क बढ़ेगा तो भी स्पीड बहुत तेजी के साथ स्पीड डिक्रीज होगी गाइस. So you can see here, this is the hyperbola curve obtained from here, torque on x-axis and speed on y-axis. If torque increases, so speed also decreases very rapidly. So this is the third characteristic curve we will get from here. Okay, so guys, this is the type of motor. This is the difference of between DC shunt and DC series motor. What happens, this is the shunt motor first and characteristics, and these are the application. What are the application? We already discussed about the applications. So for DC shunt motor, the uses are for driving constant speed line shafting, lathes, centrifugal pumps, machine tools, blowers and fans, reciprocating pump. So these applications require constant speed, and that is why DC shunt motor is always used in these applications. And guys, you can see for DC series motor, because DC shunt is constant speed motor, but DC series motor is called variable speed or adjustable varying speed, also high starting torque motor. So these are the application where DC series motor is used for traction work. You can see in electric engines, okay, it is used, DC series motor, electric locomotives, rapid transit system, trolleys, cars, cranes, hoist and conveyors. So these applications require high starting torque. That is why DC series motors are used here. So guys, this was the session of today's session of concept of the day, and that's it for today, and we will meet in our new video tutorial in the new segment concept of the day. Till then, goodbye.